Considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. So, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have Assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि वहां रह रहे लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा और जल्द से जल्द बांग्लादेश में जो स्थितियां थी वो बेहतर होंगी और इसको लेकर हम लगातार बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. साथियों ये भी कह रहे हैं कि हमने बॉर्डर पर सेना को भी कह दिया है कि हालात पर नजर रखें और ज्यादा अलर्ट रहें. ये बहुत जरूरी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई है वो सबके लिए कंसर्न का विषय है और उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है. Of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you. Debate resumes. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. No. Shri Deepak, please. Nothing positive. Everyone has positive. Please don't exploit it. Please. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. Shri Anil, nothing is going on record. Shri
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एस जयशंकर ने कहा बांग्लादेश के हालात पर सरकार की नजर है। राज्यसभा में बांग्लादेश पर सरकार का बयान। राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संबोधन आप सुन रहे थे और वो ये कहते हुए नजर आए बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध मजबूत है, ये भी कहा, और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, ये भी तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। साथ ही कहा कि हमारी सेना बॉर्डर एरियाज पर इस वक्त अलर्ट है, बांग्लादेश के हालात पर सरकार की नजर बनी हुई है, और ये भी कहा कि हमने सेना को कहा है कि वो पूरी तरह से अलर्ट बॉर्डर एरियाज पर है, बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध मजबूत। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जो राज्यसभा में भी बोलेंगे इसको लेकर, साथ ही बता दें आपको कि वो बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा की भी बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात बिगड़े हैं, उस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। जुलाई में पूरे बांग्लादेश में हिंसा हुई है। एस जयशंकर विदेश मंत्री संसद में ये बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया। दरअसल कई वीडियोज ऐसे सामने आए हैं जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, वहां महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि शेख हसीना ने भारत आने का अनुरोध किया था। जयशंकर ये कह रहे हैं, जयशंकर विदेश मंत्री कह रहे हैं कि शेख हसीना ने भारत आने का अनुरोध किया था। बांग्लादेश के हालात पर सरकार की नजर बनी हुई है। साथ ही हमने जो बांग्लादेश से लगी हुई सीमा है वहां पर जवानों को भी, सिक्योरिटी को भी ये कह दिया है कि वहां पर हमारे जो जवान तैनात हैं वो नजर बनाए रखें, बल्कि और ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत है। इस वक्त बांग्लादेश के हालात पर हम नजर बनाए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वहां पर स्थितियां पहले जैसी हो जाए, जल्दी स्थितियां सामान्य हो, लेकिन खास तौर पर वहां हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, खतरे में बांग्लादेश का हिंदू समुदाय, और जैसे कि अनामिका आप बता रही हैं, इस वक्त वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जैसी हमने तस्वीरें इससे पहले अफगानिस्तान में देखी, पाकिस्तान, श्रीलंका में देखी, वैसी ही तस्वीरें इस वक्त बांग्लादेश में भी नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि सेना वहां पर हालात काबू नहीं कर पा रही है, क्योंकि पहले आशंका जताई जा रही थी कि जैसे इस्तीफा दे देंगी शेख हसीना, उसके बाद ही स्थिति काबू में होगी, बेहतर वहां पर सिचुएशन होगी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, इसकी जानकारी खुद एस जयशंकर देते हुए नजर आए। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, ये भी वो बात कह रहे हैं, और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है बांग्लादेश में, और इससे सभी चिंतित है। चिंता जाहिर करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर नजर आ रहे थे, आप उनको सुन भी रहे थे, और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि लोकसभा में भी उनका संबोधन होने वाला है। तो और पड़ोसी देश है, ऐसे में पड़ोसी देश पर नजर लगातार बनी हुई, क्योंकि इसका असर भारत पर क्या पड़ सकता है, और भारत आने वाले समय में इसको लेकर और क्या बड़े कदम उठाएगा, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। लेकिन विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि खुद शेख हसीना ने अनुरोध किया था भारत आने का, उसके बाद वो भारत पहुंची। हमारे सहयोगी सुचरिता कुकरेती इस वक्त न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ी हैं। विदेश मंत्री सुचरिता, साफ कह दिया है कि शेख हसीना ने अनुरोध किया था, लेकिन हमारे बांग्लादेश से संबंध अच्छे हैं, इसलिए वहां के हालात पर नजर लगातार बनी हुई है हमारी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का, विदेश मंत्री एस जयशंकर का, क्योंकि हमें पता है कि कल सबसे पहले प्रधानमंत्री को भी एस जयशंकर ने ब्रीफ किया, उसके बाद उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी, उनको भी ब्रीफ किया। आज पूरे देश को जो जानकारी, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे अवगत कराने के लिए, जानकारी देने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट राज्यसभा में दिया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हालात बुरे हो गए थे बांग्लादेश में। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन जुलाई के महीने में लगातार चल रहे थे, और जिस तरह से हालात अचानक बिगड़े, शेख हसीना ने भारत से अनुरोध किया, एक शॉर्ट नोटिस में अनुरोध किया गया कि वो भारत आना चाहती हैं।